हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। हम सब अपने घर में बहुत कंफर्टेबली रहते हैं। हमारे घर में हमारे कंफर्ट के लिए कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। देयर इज़ अ टेलीविज़न, देयर इज़ अ अवन, माइक्रोवेव अवन, अ फ्रिज, अ वॉशिंग मशीन, अ मिक्सर ग्राइंडर। बहुत ठंड लगने पर एक हीटर, बहुत गर्मी लगने पर एक एसी। नाउ आर होम इज़ आर हैप्पी प्लेस, जहाँ हम प्रोटेक्टेड हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल से, डिफरेंट वेदर चेंजेस से। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस। इन द सिमिलर वे, डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट एनिमल्स ऑल्सो स्टे इन होम्स या हैबिटेट्स, जहाँ पर उनको कंफर्टेबल फील होता है, जहाँ उन्हें प्रोटेक्टेड फील होता है. So like a home is our home, a habitat is the home of different plants and animals. This is what we are going to learn in this chapter, the living habitat. Habitat मतलब a place or our surroundings जिसके अंदर हम रहते हैं. So हमारी surroundings और हमारा habitat क्या हुआ? हमारा house. और एक plant का habitat क्या हुआ? जिस area में वो grow कर रहा है. So we are going to learn about the different types of habitat. We are going to learn about the factors that influence habitat. हर habitat के accordingly plants और animals में क्या adaptations हैं और इन adaptations की वजह से plants के अंदर, animals के अंदर क्या क्या structural changes आए हैं. So let's begin with habitats. Now what is the importance of a habitat? एक अच्छा habitat क्या होता है? A good habitat is a suitable place where an animal and plant can stay and rest. It makes the required food available. मतलब प्लांट्स जहाँ ग्रो कर रहे हैं वहाँ उनको सफिशिएंट सनलाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है. एनिमल्स जहाँ पे हैं उनको उनके अकॉर्डिंगली फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा. It provides protection to the inhabitants. It provides a suitable place for them to reproduce. There is no fear, and it provides enough place for them to move about. Now there are different types of habitat. अब अगर हम animals and plants की बात करें तो there are terrestrial habitats. Terrestrial habitats का मतलब होता है land habitat. Land habitat के अंदर animals have 4 legs. They have got a well developed nervous system. In fact, the plants also here grow to their full bloom. The next kind of habitat is the aquatic habitat. Aquatic मतलब पानी के अंदर. So there are different types of animals like fish and turtle that live under water. Water के अंदर plants भी different types के होते हैं. Coming down to aerial habitats. Aerial habitats के अंदर हमारे birds आते हैं of different kinds. इसके अलावा हमने arboreal animals के बारे में भी पढ़ा हुआ है. Arboreal animals are the animals which majorly live on trees but come down on land from time to time. अब इन different habitats में कौन से ऐसे factors होते हैं जो decide करता है कि कौन सा animal या plant कहाँ रहेगा. Let us study about these factors. The first factor is called temperature. अब टेम्परेचर क्या डिसाइड करेगा? फॉर एग्जाम्पल एक नीम ट्री को एक नॉर्मल प्लेन्स का टेम्परेचर चाहिए, वेराज एक कैक्टस प्लांट तेज डेजर्ट की गर्मी में सर्वाइव कर सकता है. आप एक लायन को नॉर्थ पोल पे नहीं ले जा सकते, आप एक पोलर बेयर को दिल्ली में नहीं ला सकते. दिस इज बिकॉज these organisms or these animals and plants are adapted to these temperatures. टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से. टेम्परेचर के बाद आती है बात लाइट की. हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था that no living organism can survive without light. Only bats, owls and cockroaches like to live in the dark. So light is required by green plants to manufacture their food. Even plants need light because we feel energized when we see the sun rising. After light comes water.
We all know that all three living organisms, plants, animals and human beings, depend majorly on water. ऐसे हैबिटेट्स जहाँ पे वाटर कम होता है, जैसे कि डेजर्ट्स, वहाँ पे उगते हैं कैक्टस और वहाँ पर रहते हैं डेजर्ट रैट्स और कैमल्स, बिकॉज ये ऑर्गेनिजम्स पानी के बिना बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं. एयर इज अनदर इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हमें ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए खाना बनाने के लिए, और प्लांट्स इस प्रोसेस में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन विच बिकम्स द लाइफ गिविंग गैस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. इन सब के अलावा एयर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. एयर का फंक्शन होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. वी नो दैट सर्टेन प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय डेवलपिंग सीड्स. अगर सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाएगा, सारी सीड्स एक जगह रह जाएंगी, तो वो आपस में कंपटीशन करना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे वो प्लांट की स्पीशी डाई आउट हो जाएगी. सो in case of seeds like dandelion and maple, they have wings or hair on them and these are carried away by wind. Soil is the next important factor that decides कि वहाँ कौन सा प्लांट ग्रो करेगा. डेजर्ट सॉइल के अंदर कैक्टस ग्रो करेगा, टेरेस्ट्रियल सॉइल के अंदर, फील्ड्स के अंदर राइस, व्हीट एक्सेट्रा ग्रो करेंगे, और माउंटेन्स के ऊपर पाइन और फर ग्रो करेगी. जो डेजर्ट सॉइल होता है उसके अंदर अर्थवर्म्स नहीं रह सकते, उसके अंदर डेजर्ट स्नेक, डेजर्ट लिजर्ड और डेजर्ट रैट्स रहते हैं. सिमिलरली जहाँ जहाँ सॉइल फर्टाइल होगा वहाँ वहाँ पर ह्यूमन बींग ज़्यादा होंगे, बिकॉज दे विल बी एबल टू ग्रो देयर क्रॉप्स. डेजर्ट के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन कम होती है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अडेप्टेशंस. अडेप्टेशंस का क्या मतलब है? अडेप्टेशंस का मतलब है कि आपकी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आप अपनी बॉडी चेंज कर ले. एक छोटा सा अडेप्टेशन का एग्जाम्पल देती हूँ. जब आपको पता होता है कि एक पर्टिकुलर काम करने से बहुत डांट पड़ेगी, तो आपकी आदत बन जाती है कि वो काम नहीं करना है. दिस इज योर अडेप्टेशन. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट वेज इन विच दे अडेप्ट. अब एक कैमल क्या करता है? कैमल की थिक स्किन होती है, कैमल की हम्प के अंदर वो खाना स्टोर करता है, बिकॉज ऑफ विच इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज. सिमिलरली एक लोटस प्लांट एक फ्लोटिंग प्लांट होता है, उसके बहुत ब्रॉड लीव्स होते हैं और हॉलो स्टेम होते हैं, so that it keeps floating. Now these are the different adaptations that help different organisms to survive in different areas. Coming down to adaptations in plants and animals, हम बात करते हैं xerophytes, hydrophytes और mesophytes की. These are the three types of plants. Xerophytes मतलब the plants that stay in hot desert climate. These plants, as we can see, they have a very thick and juicy stem. इस stem के अंदर पानी स्टोर होता है. लीव्स जो होती हैं वो थॉर्न्स की तरह होती हैं. इससे दो फायदे होते हैं. एक तो ट्रांसपिरेशन कम होती है, एंड दूसरा जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो इनको नहीं खाते हैं. द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर और अंडर वाटर. इन प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं वो बहुत पतली रिबन लाइक होती हैं. जो स्टेम होती है वो बहुत लाइट वेट होती है. दीज प्लांट्स कैन फ्लोट ईजिली. इनका स्टोमेटा ऊपर की साइड होता है, ऑपोजिट साइड, दैट इज आउटसाइड द वाटर, क्योंकि लोअर सरफेस ऑफ द लीफ विल बी इनसाइड द वाटर. दीज आर हाइड्रोफाइट्स. Then mesophytes are plants like mango and neem that grow in our cities. इनको पानी की कमी नहीं होती, इनको जगह की कमी नहीं होती. That is why you can see these trees grow into such big and huge beautiful trees. Coming to modification in plants for specialized function. सबसे पहले बात करते हैं फूड स्टोरेज की. हमें पता है प्लांट्स अपना एक्सेस फूड स्टोर करते हैं और वो जहाँ स्टोर होता है वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, जैसे पोटैटो और जिंजर. फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन.
वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है? जब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से न्यू प्लांट्स बनते हैं, जैसे शुगर केन की और रोज की स्टेम से न्यू प्लांट बनता है। जो ब्रायोफाइलम की लीफ होती है उसके टिप के ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिनको आप निकाल के फ्रेश पॉट में प्लांट कर सकते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जिससे वो फूड बना सकते हैं। एंड प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स डेवलप सर्टेन एडेप्टेशंस, जैसे कि कैक्टस के अंदर थॉर्न। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एडेप्टेशंस बेस्ड ऑन हैबिटेट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करते हैं, द एनिमल्स दैट स्टे ऑन लैंड. These animals have got lungs for respiration, their body is covered with hair, they have well developed nervous system with sense organs, they move with the help of their feet and limbs. याद रखें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब लैंड वाले एनिमल्स। यहाँ पर बहुत कंपटीशन होता है बिकॉज पॉपुलेशन इज अ लॉट। तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत क्विक एंड क्लेवर होते हैं। कमिंग टू एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं। दीज एनिमल्स हैव गॉट अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, इनके नेक नहीं होता। दे हैव पावरफुल टेल्स एंड फिन्स फॉर स्विमिंग। दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन राइट अंडर देयर आई, एंड सम फिश हैव एयर ब्लैडर which makes floating easier. The next is the amphibious animals. Amphibious animals कौन से होते हैं? The animals that can live both on land and in water. Now these animals have got a moist and slimy skin which helps in breathing underwater. और land के ऊपर ये कैसे breathe करते हैं? lungs से. They have got hind legs, यानी कि पीछे की टांगे बहुत strong होती हैं, so they can jump. And they have webbed feet which help in swimming. Coming down to aerial adaptations, यानी कि air के अंदर birds कैसे रहते हैं. They have streamlined bodies which are covered with feathers. Birds के 4 limbs जो होते हैं, ऊपर के limbs, they are modified into wings. Birds have light hollow bones जिससे वो fly easily कर सकते हैं, and they have lungs for respiration. These were about the adaptations based on habitat. अभी हमने बात करी थी कि प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। One of the major ways in which animals protect themselves is by camouflaging. Camouflaging का मतलब है जो बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंगली एनिमल्स का कलर चेंज हो जाता है। एक पोलर बेयर वाइट होता है क्योंकि वो स्नो पे रहता है और दूर से अपने एनिमीज को नजर नहीं आता। देयर इज एन इंसेक्ट कॉल्ड अ स्टिक इंसेक्ट एंड देयर इज एन इंसेक्ट कॉल्ड अ लीफ इंसेक्ट। दीज इंसेक्ट्स आर ऑफ द सेम कलर एज द प्लेस दे लिव इन। इसकी वजह से एनिमीज इनको कैच नहीं कर पाते हैं। डिसीविंग द एनिमी यानी कि एनिमी को धोखा देना। लिजर्ड्स क्या करते हैं? अगर आप लिजर्ड के पीछे भागते हैं वो अपनी टेल छोड़ देती है जो डांस करते रहती है। हम टेल को देखते रहते हैं, लिजर्ड भाग जाती है। द लिजर्ड कैन रीग्रो इट्स टेल. दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज. देन कम्स मिमिक्री. मिमिक्री का मतलब क्या होता है? मिमिक्री के अंदर एक स्पीशी दूसरी स्पीशी की आवाज़ निकाल के उसको अट्रैक्ट करती है एंड देन दे यूज इट एज फूड. सो यू सी हाउ इंटेलिजेंट द एनिमल्स आर दैट दे कैन सर्वाइव ऑल दीज डिफिकल्टीज एंड रिमेन live. Because there is a lot of competition, everybody wants to eat smaller organisms. So in this chapter, you have learned about the various adaptations of plants and animals depending on their habitat and the adaptations that they develop to protect themselves. Thank you.